راضی ہے سلام، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند خدا، آسمانی بادشاہ، خدا باپ قادر مطلق، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تیری پرستش و تعظیم کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اس وقت اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہے۔ اے خدا باپ، تو نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور صلح کا شہزادہ ہو۔ بخش دے کہ دنیا کی سب بادشاہتیں مسیح بادشاہ کو قبول کریں اور اس سے صلح کی راہ سیکھیں۔ سب لوگوں پر امن، صلح اور صلح کی روح نازل ہو کر، تاکہ تیرے سارے بچے ایک خاندان ہو کر اکٹھے رہیں اور اس ملک میں امن ہو، صلح ہو، سلامتی ہو۔ آج کی ساری عبادت کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں اور تیرے خادم کے لیے بھی سے دعا کرتے ہیں، تو اپنے خادم کو اپنے پاک روح کی رہنمائی عطا فرما۔ حمد و ثنا میں تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے۔ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں گے۔ کوائر نے جو گیت آج شالامار باغ میں وہاں ڈپٹی کمشنر نے ہمیں بلایا تھا، وہاں پہ بہت بڑا اچھا پروگرام ہوا۔ کوائر نے وہاں حمد و تعریف کی۔ گیت نمبر 55 جہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتابیں ہیں۔ ایک تارا چمکا ہے، ایک نور سا اترا ہے۔
खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में फिर आज की रात बख्शी। जो काम मैंने आप सब ने पिछले दिनों किए, पिछले साल में, शायद मेरा और आपका खुदा उनसे नाखुश था, फिर भी उसका कहर टल गया और आज की मुक़द्दस और हसीन रात मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा ने बख्श दी, ताकि हम उसकी तारीफ़ करें, उसकी सताइश करें और खुदावंद का शुक्र अदा करें। दुआ मांगेंगे।
پیامبر ایمینول آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. چھوٹی سی دعا کریں, شکر گزاری کریں. تو ہم شکر تیرا فضل تیرا کر اس لمحے خداوندہ جب تو نے یہ موقع دیا اس سارے سال میں خداوندہ تو نے ہمیں حفاظت میں رکھا ہمارے خاندانوں میں. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ تو نے جن کو نہیں موقع مل سکا تو خداوندہ وہ آج کا دن لے سکیں. لیکن ہم پھر بھی خداوندہ سارے جتنے خاندان یہاں موجود ہے جتنی روحیں موجود ہیں خداوندہ تیرے تابع کرتا ہوں. ریکویسٹ کرتا ہوں خداوندہ کہ آنے والے دن آنے والے سال ان سبوں کے لیے باعث بن جائے اور سارے پروگرام کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور درخواست کرتے ہیں خداوندہ اس مینجمنٹ کے لیے اس چرچ کے لیے خاص کے لیے صحت اور تندرستی مانگتے ہیں تیرے پیارے میٹھے جلالی نام میں آمین. گیت نمبر 299 ہے 299 گیتوں کی اس کتاب میں جو آپ کے پاس شالکڑ کنونشن گیتوں کی کتاب ہے. گیت نمبر 299. کتنی پیاری مقدس حسین رات ہے آدمی سے خدا کی ملاقات ہے. حسین رات ہے کتنی پیاری مقدس حسین رات ہے آدمی سے خدا کی ملاقات ہے آدمی سے خدا کی ملاقات ہے. کتنی پیاری ستارہ ہے پورا میری ستارہ آج جلدی میں آیا
दुआ में याद करेंगे वो जहाँ पे भी हैं, खुदा उनकी हिफाजत निगहबानी करे। और आज की रात जहाँ कहीं भी इबादत हो रही हैं, खुदा खुद हमारे लोगों की हिफाजत निगहबानी करे। मैं पादरी शारून मल साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो आएँ, दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद, आज के इस क्रिसमस की मिडनाइट सर्विस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, तूने हमें अपनी मोहब्बत से घिरे हुए अपने घर में जमा किया ताकि हम खुदावंद मिलकर तेरे नाम की हमद व ताज़ीम करें और खुदावंद यीशु तेरे मुजस्सम होने की खुशी मनाएं। और खुदावंद हम गौर करें कि तू इस जहान में हमारे लिए आया और खुदावंद तूने सलीब पर हमारी खातिर अपनी जान दी ताकि हम तेरी कुर्बान होने के वसीले से अब्दी ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद, हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं खुदावंद, आज रूह कुद्स के वसीले से हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई फरमा। और खुदावंद, जहाँ जहाँ आज इबादत हो रही हैं खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, तू हिफाजत फरमा। और कल के रोज़ भी जहाँ इबादत होंगी हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, तमाम ख़तरात से तू महफूज रख और तू आप हिफाजत फरमा। खुदावंद, क्रिसमस के इस बाबरकत मौके पर खुदावंद हमें कसरत से बरकत दे और हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, यीशु के नाम, आमीन। आज की इबादत हम सब के लिए बरकत का बायस बने और खुदा के खादिम जब खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें तो उसके कलाम के वसीला से भी इस साल का क्रिसमस हम सब के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, बच्चों के लिए खुशी, राहत, तसल्ली और इत्मीनान का सबब ठहरे। आज सुबह ये चारों कैंडल्स मुकम्मल हो गई हैं। अब सबको पता है चर्च की दीवारों पे भी ये बातें लिखी हुई हैं। आज सुबह जो कैंडल हमने जलाई थी वो अमन के नाम मंसूब की जाती है, खुदावंद यीशु मसीह जो अमन का शहज़ादा है। तो दरमियान की कैंडल है ये शमा। आज तकद्दस माब डॉक्टर आज़ाद मार्शल, बिशप ऑफ रायवंड, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और ये कैंडल, ये शमा रोशन करें जो खुदावंद यीशु मसीह की वलादत की ख़ास शमा है। आमीन। हम बिशप साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कैंडल वो हमारे साथ मिडनाइट सर्विस में आके शमा को रोशन करते हैं। ये हमारी कमिटमेंट है बिशप साहब के साथ कि हमारी मिडनाइट में वही होंगे। सर थोड़ी देर के लिए इधर आप आ जाइए ताकि हम आपको वेलकम कर सकें प्यार से, मोहब्बत से। फिर उसके बाद हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। खुश हो के मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मुस्कुराया करें, खुदा का शुक्र अदा करें अच्छी रात के लिए। इंतखाब की रास्ता छोड़े
सेंट जॉन्स टीवी पे आप सारे प्रोग्राम देख सकते हैं हमारे। और बड़ी अच्छी डीलिंग है इनकी, मुस्कुरा के बात करते हैं, शुक्र है। थैंक यू, हम आपको वेलकम करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि आप आए आज। इंजील हमारे लिए आज की इंजील हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली 14 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो नूर वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे हवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जब वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की शफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के छूटने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आइए हम दुआ मांगे। जमायत बैठ जाएं। केक कटिंग सेरेमनी है, लेकिन हम वो मैसेज के बाद करेंगे क्योंकि ये आम इबादत है। शारबानी आज नहीं है, आप जानते हैं, इस बात से वाक़फ़ हैं। हम सब खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने फिर हमारी ज़िंदगी में 2023 का क्रिसमस बख्शा, ताकि हम ये खुशियाँ और ये मोहब्बतें एक दूसरे के साथ बांट सकें। मैं आप सब की तरफ से बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, खुशी के साथ खुदावंद के खादिम तक़द्दस माब डॉक्टर आज़ाद मार्शल, बिशप ऑफ रायवंड, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान को दावत देता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और खुदावंद का ज़िंदा पाकलाम जो खुदा ने उन्हें आज रात हम सब के लिए दिया है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। जनाब बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल साहब। आइए हम दुआ मांगे। Words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable to you, O Lord. Amen. मैं सेंट जॉन चर्च का, आपकी सारी कांग्रेगेशन का, वाली साहब का और मिसेस कोकर का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि आप हर साल मुझे दावत देते हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि अगर आप दावत ना भी देंगे
मैं फिर भी आ जाऊँगा। इजाज़त है? जब चाहे। मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने किसी हद तक इस हम सब उनको याद करते हैं जैसे हम अपने बुज़ुर्गों और अजीज़ों को याद करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद जहाँ पर भी वो हैं, जो खुदावंद के पास सो गए वो खुदावंद के आराम में हैं, जो अभी हयात हैं खुदावंद उनको बरकत दे जहाँ पर भी वो हैं। और हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने आज हमें ये वक्त दिया कि आज हम खुदावंद की मर्ज़ी से एक नया क्रिसमस देखें और उसमें शामिल हों। लेकिन क्रिसमस की जो कहानी है हमें ये इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वो कहीं क्रिसमस की एक्टिविटीज़ में गुम ना हो जाए, जो क्योंकि हम हर साल वो सब कुछ करते हैं। हम हर साल शायद वही कैरल्स गाते हैं, हर साल हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं, हर साल हम ये एडवेंट की कैंडल्स भी लगाते हैं और आज हमने यीशु मसीह की कैंडल लगाई है। खुदावंद जो दुनिया का नूर है, चारों हफ्तों के बाद खुदावंद यीशु जो दुनिया का नूर है, जो क्रिसमस का मकसद है, जो क्रिसमस में सबसे ज़्यादा जिसकी अहमियत है, यही वो बात मैं आज करना चाहता हूँ कि क्रिसमस की अहमियत और उसकी हकीकत क्या है। और क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो क्रिसमस की अहमियत से वाकिफ़ नहीं, वो शायद क्रिसमस को क्रिसमस ट्री लगाना ही समझते हैं, या जो दावतें या जिस तरह से अमूमी तौर पर कोई ईद या क्रिसमस मनाया जाता है, हमने क्रिसमस को, क्रिसमस का इजहार, उसकी अहमियत को किस तरह से दूसरों तक पहुंचाना है। सबसे पहले हमें खुद ये जानने की ज़रूरत है कि क्रिसमस जो है वो खुदा के इलाही मंसूबा का हिस्सा है, खुदा के इलाही मंसूबा नजात का हिस्सा है। और वो बैतलहम से शुरू नहीं हुआ। आज बैतलहम जो है वहाँ की फ़िज़ा बड़ी उदास है क्योंकि बड़े सालों में, डेकेड्स में ये पहली दफ़ा है कि वहाँ पर चरनी नहीं सजी। लेकिन और वहाँ पर जंग की वजह से बैतलहम को में लाखों लोग नहीं आ सके। लेकिन क्रिसमस जो है वो सिर्फ बैतलहम नहीं, क्रिसमस का आगाज़ सिर्फ बैतलहम से नहीं हुआ, बल्कि ये कायनात की तख्लीक से हुआ। आज हमने यूहन्ना के अंजील के शुरू में पढ़ा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही खुदा के साथ था। तो गोया ये सारा कुछ क्रिसमस के हवाले से है। क्रिसमस का आगाज़ बैतलहम से नहीं बल्कि कायनात की तख्लीक से हुआ, जब खुदा ने दुनिया को बनाया। अगर हम कलाम मुक़द्दस में जाएं तो हम देखें कलाम मुक़द्दस की में पैदाइश की किताब की पहली आयत में क्या लिखा है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने अपनी तख्लीक के वसीले अपनी क़ुव्वत और अपनी मोहब्बत का अमली मुज़ाहरा किया। आप इस लफ्ज़ को, इस सेंटेंस को याद रखें कि खुदा का दुनिया को बनाने का मकसद अपने आप को, अपनी ताकत ज़ाहिर करना नहीं था, बल्कि इंसान के लिए अपनी मोहब्बत, अपनी अज़ली मोहब्बत का इजहार था। मगर कुछ देर के बाद अगर हम ये जाने कि इंसान गुनाह की हालत में गिर गया, गुनाह में गिर गया, और फिर खुदा ही, वही खुदा जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसने उसको उस गुनाह से छुड़ाने का मंसूबा बनाया। खुदा ने पहले मर्द और पहली औरत के सामने जो गुनाह की आजमाइश में मगलूब हो गए थे, एक वायदा किया, और वो वायदा क्या था
کہ عورت کی نسل میں سے ایک منجی پیدا ہوگا اور وہ منجی نسل انسان کو شیطان کی غلامی سے نجات دے گا۔ اس وعدے میں خدا کی نجات کے منصوبے کا اشارہ ہمیں ملتا ہے، بالکل پیدائش کی کتاب میں سے ہی، آغاز میں ہی، کائنات کے آغاز میں خدا نے نجات کا منصوبہ بنا لیا۔ خدا نے یہ الفاظ تو شیطان کے لیے بولے اور کہا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ اگر یہ الفاظ تو دشمن کے لیے، شیطان کے لیے کہے گئے، مگر ان الفاظ کے وسیلے خدا نے انسان کو چھڑانے کا وعدہ پیش کیا، جس کی تکمیل ہر کرسمس پر ہوتی نظر آتی ہے، جس کی تکمیل ہم کرسمس کے موقع پر سمجھ سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں نبوتوں اور وعدوں کا سلسلہ ہے، اور وہ ساری نبوتیں جو ان دنوں میں ہم پڑھیں گے، سنیں گے، وہ کرسمس کا میدان تیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کرسمس کی تیاری کی طرف گویا خدا تعالیٰ انسان کو لے کے آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی میں بہت ساری نبوتیں ہیں، لیکن اکثر ہمیں یسایہ نبی کی بہت ساری نبوتیں ہیں جو زبانی یاد ہیں، ہم ان کا بار بار ذکر بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر یسایہ 9 باب اور اس کی 6 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ ہیں وہ وعدے جن کی بدولت بنی اسرائیل میں امید کا چراغ جلتا رہا۔ بنی اسرائیل جب خدا یسوع آئے یا اس کے آنے سے پہلے وہ بار بار دشمن کی گرفت میں آئے، وہ غلام بنے، ان پر دوسری قوموں نے چڑھائی کی اور قبضہ کر لیا، اور اب بھی جب خدا یسوع مسیح آئے تھے تو وہ رومیوں کا تسلط تھا، رومی وہاں چھائے ہوئے تھے، اور وہ غلام تھے، وہ ان کی قید میں تھے، وہ ان کے نیچے تھے، ان کو ٹیکس دیتے تھے اور زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل ہمیشہ یہ امید کا یہ چراغ جو ان کو نبوتوں کی صورت میں ان کے پاس تھا، اور وہی ہر سنگاگ پر، ہر عبادت کے موقع پر وہ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جب عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو ان کو 5 کتابیں تو ان کی لازمی ہیں جن میں سے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی شریعت کی کتابیں، شریعت کی 5 کتابیں جو موسیٰ کی معرفت ان کو ملی، وہ ان کا حاصل کلام ہے، وہ ان کی بنیادی ڈاکیومنٹ ہے جن کو ان کو پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی تالمود ہے جو انہوں نے بعد میں بابل میں قید میں جانے کے بعد تیار کی، یعنی کہ وہ سارے قوانین جو خدا نے ان کو دیے ہیں انہوں نے کیسے ان کی تفسیر کرنی ہے، جو کہ کبھی کبھی بڑی معنی خیز اور کبھی کبھی وہ بڑی عجیب لگتی ہے۔ پھر تیسرا کام یہ انبیاء کے صحائف تھے۔ تو بنی اسرائیل جب عبادت خانہ، جب ان سے ہیکل چھن چکی تھی تو وہ عبادت خانے میں عبادت کے لیے آتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے 5 کتابوں میں سے پڑھتے تھے، شریعت کی 5 کتابوں میں سے، اور پھر صحیفوں میں پڑھتے تھے، کیونکہ صحیفے ان کو ایک امید دلاتے تھے۔ صحیفے اس بات کا ثبوت تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو چکا ہے، چاہے ہم قید میں ہیں، چاہے ہم پر بابلی چھائے ہوئے ہیں یا رومی چھائے ہوئے ہیں، لیکن امید کا چراغ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دن ہمیں آزاد کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ بھی ایک مشکل تھی کہ وہ اس آزادی کو سیاسی اور فوجی آزادی سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسیحا ان کو دنیاوی طریقے سے آزاد کرے گا، لیکن خدا کا منصوبہ نجات
انسان کو ہمیشہ سے ایک ایسا نجات دہندہ دینے کا تھا جس کے وسیلے وہ گناہ کی قید سے آزاد ہو جائیں، جس کے وسیلے انسان خدا کے ساتھ دوبارہ بحال ہو جائے اور بحال ہو کر وہ خدا کے ساتھ شامل ہو کر خدا کی بادشاہت کا حصہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں ایک لڑکا دیا گیا، ہم ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اس لیے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ ملا لے۔ خدا باپ جس طرح سے باغ عدن میں ہم سے رفاقت رکھتا تھا، اس رفاقت کو ہمارے ساتھ دوبارہ بحال کر لے۔ مقدس متی اور مقدس لوکا اناجیل میں جو اناجیل ہمارے پاس، ان میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا بیان ملتا ہے، جس کو مجھے یقین ہے کہ اس ہفتے ایڈونٹ کے ہفتوں میں بار بار پڑھا جاتا رہا ہوگا، لیکن ایک بات ہم اس میں سے سیکھتے ہیں جو آج ہم نے یوحنا کی انجیل میں بھی سیکھی اور پڑھی، کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے وسیلے خدا انسانی تاریخ پہ شامل ہو گیا۔ خدا اب دور نہیں، خدا اب آسمان پر نہیں، بلکہ وہ انسان ہماری تاریخ میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یہ ہے کرسمس کا مطلب، یہ ہے اس کا تجسم۔ چرنی میں صرف ایک ننھا بچہ نہیں تھا، بلکہ مجسم خدا تھا جو نجات کے منصوبے کا اہم حصہ بنا۔ چرنی میں ایک ننھا بچہ نہیں تھا، بلکہ مجسم خدا تھا جو نجات کے منصوبے کا حصہ بنا۔ خدا یسوع کی پیدائش دنیا میں ایک بڑے نبی کا آنا نہیں تھا، ایک بڑی ہستی کا آنا نہیں تھا، ایک اچھے انسان کا آنا نہیں تھا، بلکہ بذات خود خدا کا ظاہر ہو کر آنا تھا۔ اور اس کی وضاحت ہمیں غلطیوں میں ملتی ہے۔ 4 باب 4 اور 5 آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، تاکہ وہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے پیدائش کا، وہ وعدہ پورا ہو، اور شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ وہ شریعت کو پورا کرے، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑائے۔ وہ ساری اس کی قوم بنی اسرائیل جو شریعت کے متحد تھی، جو خداوند کے وعدے کے مطابق تھی، ان کو چھڑائے، اور پھر ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے، اور پھر ہمیں وہ گود لے، ہمیں اپنا بنا لے، اپنا خون دے کر ہمارے لیے کہہ سکے کہ اس نے ہمیں ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم اس کے لیے پالے اس وعدے پر عمل کر کے بنتے ہیں، کیونکہ جو اس نے وعدہ کیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا یسوع سب وعدوں اور نبوتوں کی تکمیل کا وسیلہ بنا۔ یسوع ساری نبوتوں کی تکمیل کا وسیلہ بنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، جو بات میں کہنا والا ہوں وہ شاید ہم کرسمس کے موقع پر نہیں کرنا چاہتے، کہ صلیب اور چرنی ایک دوسرے کا لازمی حصہ ہے، کہ صلیب اور چرنی، کرسمس صلیب کے بغیر ادھورا ہے۔ جتنے لوگوں نے عبادت کا پیجن دیکھا، اس میں دیکھا کہ صلیب کو ایک نمایاں مقام ملتا ہے، کیونکہ کرسمس صلیب کے بغیر ادھورا۔ چرنی میں موجودہ بچہ اس لیے دنیا میں آیا کہ دنیا میں آتے ہی صلیب کی جانب اپنا رخ کر دے۔ اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔
اور इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि सलीबी मौत गवारा की। क्रिसमस सलीब के बगैर अधूरा है। इसीलिए जब खुदावंद यीशु तकरीबन 30 साल की उम्र में यरदन के किनारे आया तो यूहन्ना ने चलाकर कहा, उसको देखकर कहा, पाक रूह ने उस पर जाहिर किया और उसने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और वो बर्रा, उसकी गवाही किसने दी? खुदा बाप ने दी, जिसने कहा, देखो मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद के पाक रूह ने दी जो उस पर कबूतर की मानद उतरा। और बेटे ने अपना रुख आजमाइशों के बाद सलीब की तरफ, यरूशलेम की तरफ किया। और जब वो आजमाइशों के बाद आया तो जब अपने पुराने घर में वापस लौटा और अपनी इबादत खाह में आया तो उसको क्या दिया गया? यशायाह का सहीफा दिया गया। और जब उसने पढ़ा तो उसने कहा, आज के दिन ये नविश्ता मुझ पर पूरा हुआ, क्योंकि आज के दिन उसने अपना सलीबी मिशन शुरू कर चुका था, जहाँ पर वो हमारे लिए अपनी जान दे। यीशु का काम मौत के साथ ख़त्म नहीं हुआ, वो मुर्दों में से जी उठा। और उसका मुर्दों में से जी उठना हमारे ईमान के कोने के सिरे का पत्थर है। उसका मुर्दों में से जी उठना हमारे ईमान की सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई है। पहला कुरिन्थियों में 15 बाब में पौलुस रसूल इस बात की गवाही देते हुए कहता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मौत, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये वही इकरार है जो अभी हमने अकीदे के ज़रिए सब ने मिलकर किया। यीशु अब्दी है और वो हमारी ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ है। यीशु का मुर्दों में से ज़िंदा होना क्रिसमस की तारीख को एक वाक़या से कहीं दूर तक ले जाता है। यीशु का ज़िंदा होना क्रिसमस की तारीख को के एक वाक़या को के हम क्रिसमस मना रहे हैं, उसको कहीं उससे ज़्यादा बड़ा और अफजल बना देता है। ना सिर्फ यीशु की अब्दी अहमियत को उजागर करता है, बल्कि हमारी अब्दी ज़िंदगी को की यकीन दहानी भी कराता है। खुदावंद यीशु का सलीब पर अपनी जान देना उसकी अब्दियत का वसीला और हमारी अब्दी ज़िंदगी का वसीला है। हमारी अब्दी ज़िंदगी की यकीन दहानी है। क्रिसमस जो है आखिर ज़माने का अक्स पेश करता है। आज हम 2000 साल ज़्यादा करीब हैं खुदावंद यीशु की दूसरी आमद के। जब खुदावंद यीशु इस आसमान पर चले गए तो कुछ ही हफ्तों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद शागिर्द, रसूल और शागिर्द अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करते थे। वो इस बात को बड़ी संजीदगी से लेते थे कि यीशु आने वाला है और यीशु किसी वक्त भी आ सकता है। और वो अपने आप को रूहानी तौर पर मुस्तैद रखते थे, अलर्ट रखते थे और इरशाद आज़म की हकीकत और उसके काम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो सुस्ती नहीं बरतते थे, क्योंकि वो समझते थे कि यीशु कभी भी आ सकता है। लेकिन आज तो 2000 साल गुजर चुके हैं, अब तो हम और ज़्यादा करीब हैं कि यीशु आ सकता है। और इसीलिए क्योंकि जब वो आसमान पर उठाए गए थे तो क्या वायदा था? आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया उसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा था। जिस तरह शागिर्दों ने और रसूलों ने उसको जाते देखा, वो फिर दोबारा उसको देखेंगे। क्रिसमस का
सिर्फ माजी नहीं, क्रिसमस का सिर्फ माजी नहीं, बल्कि क्रिसमस का मुस्तकबिल भी है। क्रिसमस is not only in the past, but Christmas has the future as well. और क्रिसमस का हमारी ज़िंदगी पर उसकी एप्लीकेशन क्या है, हमारी ज़िंदगी कैसे तब्दील कर सकता है। क्रिसमस हमें एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने का तकाजा करता है जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें कुर्बानी हो और ख़िदमत हो। जिस तरह यूहन्ना ने फरमाया, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने एक लौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब ज़िंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए अपने बेटे को भेज दिया। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि हम खुदा के वजूद के मंसूबा नजात का हिस्सा हैं, हम, मैं और आप। और ये एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक है जो हम गरीबों को, बेबसों को, लाचारों को मुयस्सर है। उसके लिए हमें किसी दुनिया के रिसोर्स और वसीला की ज़रूरत नहीं, सिवाय इसके कि खुदावंद यीशु जो उसके वायदे हैं उनको कबूल करें। क्रिसमस को खुदा के मंसूबा में बुनियादी और मरकज़ी मुकाम हासिल है। और नजात की उस उम्मीद की बात रोमियो के ख़त में की गई जहाँ लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। रूह कुद्स हमारी ज़िंदगी में उस उम्मीद को बढ़ाता जाता है। क्रिसमस खुदा हमारे साथ। क्रिसमस का पैगाम, क्रिसमस इमैनुअल, गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ। और उसकी तकमील इस बात में है कि खुदा शैतान के खिलाफ जंग जीत चुका है और हमारा मुस्तकबिल सलीब के वसीले हमेशा के लिए वो महफूज कर चुका है। और क्रिसमस का वक्त खुदा के बेबयान और हैरत अंगेज़ मोहब्बत को याद करने का वक्त है। और ये भी याद करने का वक्त है कि खुदा हमसे चाहता है कि हम इस अहम सच्चाई को अपनी ज़िंदगियों के वसीले दुनिया पर ज़ाहिर करें और यूं खुदा के मंसूबा नजात का में अपना हिस्सा डालें। Christmas is not only one time event, but it's the fulfillment of prophecies that we find in the Bible. The devil was defeated because of Christmas, and our future is secured because of Christmas. And Christmas is the time to remember God's love, to remember what God desires for us. क्रिसमस का ये भी मतलब है कि हम सोचें कि खुदावंद हमसे क्या तवक्को रखता है, वो हमसे क्या चाहता है। मैं दुआ करता हूँ कि हर क्रिसमस जो खुदावंद हमें देता है ये एक यूनिक मौका है और हम उसको ज़ाया न करें, बल्कि ज़रूर वक्त के थोड़ी देर के लिए रुक कर ये सोचें और खुदावंद से पूछें कि तू हमें, खुदावंद तेरी क्या मर्ज़ी है हमारी ज़िंदगी के लिए, तू कैसे चाहता है कि हम तेरी बादशाहत का हिस्सा बनकर क्रिसमस के वसीले दुनिया को तेरे नाम के बारे में, तेरे काम के बारे में, तेरे मंसूबा नजात के बारे में सिखाने और बताने वाले बने। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। और इसी के दौरान हम अपने हदिये नजराने और शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर गुजरानेंगे।
हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ दे दिया और खुदावंद सारी अच्छी चीज़ें तेरी तरफ से हैं और तेरे दिए हुए में से हम लौटाने की कोशिश करते हैं। खुदावंद तू सबसे ज़्यादा इस बात में खुश है कि हम अपनी ज़िंदगी का नजराना तुझे पेश करें, क्योंकि वही माकूल इबादत है, ज़िंदा और सच्ची कुर्बानी बनकर तेरे सामने अपने आप को पेश करें। खुदावंद तू इन नजरानों को कबूल फरमा और खुदावंद बख्श दे कि ये तेरी कलीसिया की तरक्की और तेरी बादशाहत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। चंद मिनट और है हमारे पास बातें बरकत जब हम नीचे जाएंगे तो आप आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. आज उधर इधर इधर आइए हम बरकत के कलमात से आज की अपनी इस दुआ को अब खुदा का इत्मीनान जो सब इससे बिल्कुल बाहर तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखें और कादिर खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।